Hello dear friends, welcome to the Sufi Farm channel. I am Dr. Sufyan Ahmed, HOD of Pharmacognosy. In this session, we discuss about the industrial production, estimation, utilization of vincristine and vinblastine. In this video, we learn about the crude drug, its synonym, biological source and cultivation, macroscopy, microscopy and different method of extraction and isolation, and also discuss about the estimation and identification test by the chemical and assay method, and also discuss about the utilization of the crude drug. Now let's start vincristine and vinblastine. So vincristine and vinblastine is isolated from the vinca. Now see the synonym of vinca. And so what is the vinca? Vinca alkaloid are obtained only from a species of periwinkle known as Madagascar periwinkle, that is the also synonym of vinca, and it is also known as sadabahar and sadafuli. So the vinca alkaloids are chemically indole alkaloids and are known as to possess anti-cancer, anti-hypertensive and anti-diabetic roles. So this is the general introduction of plant which is obtained from the vinca. The synonym of vinca, that is the periwinkle leaf, Catharanthus sadafuli, and biological source, the vincristine or vinblastine are dimeric indole alkaloid that is obtained from the whole plant of Catharanthus roseus belonging to family Apocynaceae. Geographical source. The vinca plant is cultivated as a garden plant in Europe and in India. The plant is native to Madagascar and is found in many tropical and subtropical countries, especially in India, Australia, South Africa and North and South America. So this is the synonym, biological source and geographical source of vinca. So vinca plant का जो है synonym क्या है? Periwinkle leaf, Catharanthus sadafuli. This is the synonym of vinca. और उसमें जो है किससे obtain किया जाता है? It is obtained from the whole plant. whole plant से इसको obtain किया जाता है. उसका botanical name क्या है? Catharanthus roseus. Family क्या है उसकी? Apocynaceae. It is a vinca plant is कल्टिवेटेड एज अ गार्डन. शुरू में उसको जो है एज अ इसको जो है गार्डन में जो है उसको कल्टिवेट करते थे, और इट इज अ यू कैन से इट इज अ ऑर्नामेंटल प्लांट. ये ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे इसको पहले क्या करते थे? यूज करते थे. और ये कहाँ पर जो है ये फाइंड आउट किया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? इज ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, स्पेशली इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. So this is about the plant habitat. The vinca is an erect, ever blooming herb or under the shrub which is woody at the base. It is 40 to 80 centimeter height. The flower are violet, pink or white in color. तो उसका जो है विनका जो है कैसा है कि उसका इट इज़ अ हर्ब, और जो है छोटा प्लांट होता है, श्रब होता है, और उसकी जो है हाइट कितनी रहती है? 40 टू 80 सेंटीमीटर रहती है, सेंटीमीटर हाइट रहती है. उसमें जो है वायलेट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं, पिंक भी आते हैं, और वाइट कलर्स के जो उसके अंदर फ्लावर्स आते हैं. डिफरेंट उसमें वैरायटीज है. और लीव्स आर अपोजिट, oblong and petiolate with entire the margin, and fruit are divergent follicles. Chemical constituent. Alkaloids are present in the entire shrub, but leaves and root contain more alkaloids. तो रूट और लीफ के अंदर जो इसके
अल्कोलाइड्स के कंटेंट जो है वो क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। द इम्पोर्टेंट अल्कोलाइड इन द कैथारेंथस आर द डीमर, इंडोल एंड इंडोलिन अल्कोलाइड्स। तो उसके अंदर जो है कैथर प्लांट के अंदर जो है ज़्यादा इंडोल अल्कोलाइड्स जो उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। उसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्टेन होते हैं? चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें जो होता है ड्रग के अंदर, विनका के अंदर कौन से चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज दी विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। possess the anti-cancer activity. It is a very famous drug to use the anti-cancer activity. Now see the macroscopy, or you can say morphology of the plant. Type annular or perennial herb, taste bitter, order slight, size 0.5 to 1 meter length, leaves ovate and oblong, flower 2 to 3 in cymes, axillary and terminal cluster. The base of flower color, 3 varieties are known, namely alba white, oscillata white with pink or carmine red eyes and roseous with rose color flower. तो इसके अंदर जो है 3 डिफरेंट जो है वैरायटीज है। एक अल्बा वाइट, जैसे कि हमने प्रीवियस इसमें बताया कि वो एक वाइट कलर के भी ऑब्टेन होते हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स रहते हैं, पिंक कलर के फ्लावर भी इसमें रहते हैं, और वाइट, पिंक और वायलेट कलर के इसके अंदर जो क्या रहते हैं वो फ्लावर्स ऑब्टेन होते हैं। उसके हिसाब से उसको जो है डिफरेंट कैटेगरी में और डिफरेंट वैरायटी में उसको डिवाइड किया गया। नाउ सी द माइक्रोस्कोपी ऑफ विनका। सो विनका के अंदर जो है यहाँ पर दैट इज दी मिडरिप, दैट इज द मिडरिप पोर्शन। मिडरिप पोर्शन का हमने जो है टीएस लिए। टीएस लेने के बाद में जो है यहाँ पर ये व्हाट इज इट, दैट इज दी अपर एपिडर्मिस। ये हो गया अपर एपिडर्मिस और नीचे हो गया ये लोअर एपिडर्मिस। अब बीच में जो रहता है मिडरिप के अंदर जो रहता है ये पोर्शन जो दिख रहा है दैट इज दी वॉस्कुलर बंडल। वॉस्कुलर बंडल के अंदर जो है वो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहता है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। और मिडरिप के नीचे ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर जो है आपका रहता है प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट रहता है, कोलिनकाइमा। और सेम अपोजिट साइड में यहाँ पर अपर एपिडर्मिस में भी कोलिनकाइमा जो है वो प्रेजेंट रहता है। और अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के, अपर एपिडर्मिस के नीचे और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पर जो रहता है ये पहला साइड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, पहला साइड सेल प्रेजेंट रहते हैं। और बीच में जो है ये जो लाइंस रहती है यहाँ पर स्पॉन्जी सेल जो है क्या रहता है वो प्रेजेंट रहता है। और ये जो है दैट इज द एडिशनल कैरेक्टर्स, दैट इज द ट्राइकोम्स। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो क्या वो ट्राइकोम्स इसके अंदर प्रेजेंट है। सो दिस इज द इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन और ऑफ अबाउट द माइक्रोस्कोपी ऑफ विनका लीफ। नाउ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, indole or indole and indoline alkaloids, in that azmalicin, leucirine and serpentine and tetrahydrol stolin and dimeric indole base of monoterpene type vinblastine और vincristin। तो इसके अंदर जो है 2 यहाँ पर रहते हैं, इंडोल अल्कोलाइड्स रहता है और टेट्राहाइड्रोल स्टोनिन रहता है। इंडोल अल्कोलाइड के अंदर अजमाइलिसिन, लोचिरिनिन और सर्पेंटाइन इसके अंदर जो है वो क्या रहता है ये प्रेजेंट रहते हैं। और सेकंड के अंदर जो है डिमेरिक इंडोल बेसिस मोनोटर्पिन टाइप्स विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C46H58 9, molecular weight 909.07 and optical rotation in methanol 32 and the color white to slightly yellow, crystalline or amorphous. Order, that is the orderless. Solubility, it is soluble in alcohol, benzene, sulfate, salt are freely soluble। तो ये जो है अल्कोहल के अंदर, बेंजीन के अंदर और सल्फेट सॉल्ट के अंदर जो क्या रहता है फ्रीली सॉल्युबल रहता है।
soluble in water but slightly soluble in इथेनॉल। इथेनॉल के अंदर जो है वो क्या रहता है, वो स्लाइटली soluble रहता है। Now see the chemical structure of vincristine और vinblastine। तो यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से वी कैन चेंज दी नेम ऑफ दैट ड्रग। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है आर, उसकी पोजीशन पर अगर कभी जो है मिथिल ग्रुप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर विनब्लास्टिन हो जाएगा। और यहाँ फंक्शनल ग्रुप की जगह पे अगर कभी हमने जो है CHO रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, विनक्रिस्टिन हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट दी विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन स्ट्रक्चर। नाउ सी extraction and isolation method. Extract the powder with the mixture solution of alcohol, water, acetic acid in the ratio of 9:1। तो यहाँ पर जो है अल्कोहल, वाटर, उसका जो है रेशियो जो है 9:1 लेना है। एंड उस पाउडर ले लेंगे, पाउडर का मिक्सचर ले लेंगे और मिक्सचर लेने के बाद उसको जो है डिसॉल्व करेंगे 9:1 अल्कोहल, वाटर, एसिटिक एसिड, फिल्टर एंड इवोपरेट दी फिल्ट्रेट टू ड्राइनेस। तो उसको फिल्टर कर लेना है, जो फिल्ट्रेट रहेगा उसको इवोपरेट कर देंगे ड्राइनेस अंटिल द ड्राइनेस। डिसॉल्व द रेसिड्यू, फिर जो रेसिड्यू रहेंगे उसको डिसॉल्व करेंगे इन 20% हार्ड HCl। 20% HCl के अंदर उसको जो है डिसॉल्व करेंगे, फिल्टर करेंगे एंड एडजस्ट द pH ऑफ फिल्ट्रेट टू 7। यानी जो है सबसे पहले हमने क्या किया, पाउडर लिया, पाउडर लेके उसको अल्कोहल, वाटर और एसिटिक एसिड के अंदर उसको क्या किए, डिसॉल्व किए। उसके बाद में उसको फिल्टर किए, फिल्टर करने के बाद में जो फिल्ट्रेट आया उसको जो है फिल्ट्रेट को इवोपरेट किए। इवोपरेट करने के बाद जो रेसिड्यू बचा हमारा उसको क्या किया हमने 20% हॉट HCl के अंदर डिसॉल्व कर दिए। डिसॉल्व करने के बाद उसको फिल्टर किए, फिल्टर करने के बाद उसकी pH एडजस्ट करते हैं कितनी, 7 अप टू 7 एंड एक्सट्रैक्ट न्यूट्रलाइज फिल्ट्रेट। उसको जो है न्यूट्रलाइज करते हैं किसके साथ, विद द बेंजीन एंड सेपरेट बेंजीन लेयर। तो न्यूट्रलाइज करने के बाद उसमें बेंजीन ऐड करते हैं और शेक करते हैं। उसमें बेंजीन लेयर हमें 2 लेयर मिलती, तो बेंजीन लेयर को क्या करना है, सेपरेट कर देना है। इवोपरेट दी बेंजीन लेयर टू गिव द क्रूड अल्कोहलाइडल रेसिड्यू। तो यहाँ पर बेंजीन हमने क्यों लिया, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट ड्रग इज इट इज सॉल्युबल इन बेंजीन। तो यहाँ पर बेंजीन के अंदर जो है वो जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उसके अंदर सॉल्युबल रहते। इसके लिए जो यहाँ पर सेपरेटिंग फनेल में हमने क्या लिया, pH एडजस्ट करने के बाद उसको न्यूट्रलाइज कर लिए और उसको सेपरेटिंग फनेल में लिए, उसमें बेंजीन ऐड किए और उसको शेकिंग किए। शेक करने के बाद 2 लेयर मिलेंगी, तो बेंजीन लेयर को क्या करना है, सेपरेट कर लेंगे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा वो किस में डिसॉल्व हो जाएगा, बेंजीन में डिसॉल्व हो जाएगा। उसको हम इजीली जो है क्या करेंगे, फिर रिमूव कर लेंगे वो लेयर को और बाद में बेंजीन को इवोपरेट कर देंगे। यू विल गेट दी क्रूड एक्सट्रैक्ट और दैट इज सब्जेक्टेड फॉर द ड्राइड रेसिड्यू टू कॉलम क्रोमेटोग्राफी कंटेनिंग द एल्यूमिना एडसॉर्बेंट। उसके बाद जो उसको कॉलम के अंदर अपने क्या कर सकते, सेपरेट कर सकते। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन के फर्स्ट मेथड। उसके बाद में मॉनिटर द कॉलम फ्रिक्शन विद TLC, सिलिका जेल, इथिल एसीटेट। तो किस तरीके से उसको सेपरेट करेंगे, कॉलम के अंदर उसको डालेंगे, उसमें जो है सिलिका जेल ले लेंगे और उसमें मोबाइल फेस कौन सी यूज होगी, इथिल एसीटेट, मिथेनॉल। उसका रेशियो जो है 9:1 होगा। यूज द ग्रेडियंट इल्यूशन टेक्निक starting from pure benzene, then benzene chloroform 1:1 and lastly chloroform methanol। ग्रेडियंट मीन्स यहाँ पर क्या है, उसकी मोबाइल फेज क्या करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे। कॉन्स्टेंटली एक ही मोबाइल फेज में अपने सेपरेशन नहीं करेंगे, उसका रेशो चेंज करेंगे तो उसमें अपना क्या होगा, सेपरेशन इजीली आसानी से होगा। उसको बोलते हैं ग्रेडियंट मेथड। एंड लास्टली collect the combined friction, give a single spot of vinblastine, further the elution of the column result in the separation vincristine। Now extraction and isolation method, that is the second method।
Vinyl leaves are extracted with aqueous alcoholic एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड अल्कोहलिक एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे. आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्वियस एक्सट्रैक्ट द रेसिड्यू इज फर्दर एक्सट्रैक्टेड विद 2% HCl and NaOH is used to adjust the pH of that extract to 4. इसमें pH जो है जो रेसिड्यू बचा एक्वियस एक्सट्रैक्ट का उसको क्या करिए, उसको जो है HCl के अंदर डिसॉल्व किए 2% और उसके बाद उसकी pH एडजस्ट करेंगे NaOH के साथ, उसको pH कितनी एडजस्ट करेंगे 4. दिस इज अगेन एक्सट्रैक्ट विद द बेंजीन, उसको फिर से बेंजीन के साथ एक्सट्रैक्ट करना है. द pH ऑफ दैट सॉल्यूशन इज देन राइज टू 7, उसकी pH जो है वो फिर 7 करना है. अगेन एक्सट्रैक्टेड विद द बेंजीन एंड pH 7 बेंजीन इज एक्सट्रैक्ट आर मिक्स टुगेदर. तो दोनों मिक्स करना है एंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ड्राई करेंगे और उसके बाद में डिसॉल्व उसको करेंगे किसमें, बेंजीन मिथिलीन क्लोराइड के अंदर. उसका रेशो कितना होगा 65 to 35 ml एंड दिस इज सेपरेटेड बाय द क्रोमेटोग्राफी. उसके बाद उसको क्रोमेटोग्राफी के अंदर सेपरेट करेंगे. द न्यूट्रल एल्यूमिना कॉलम विद बेंजीन मिथिलीन क्लोराइड सॉल्यूशन as a element using gradient solution elution technique and evaporation of the vincristine reach the friction give the vinblastine sulfate which is recrystallized from alcohol. तो इस तरीके से उसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं. तो सेपरेट करना है, सेपरेट करके इस तरह से हमें विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन जो है दोनों कंपोनेंट इजीली क्या कर सकते हैं, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. उसके बाद में उसको अल्कोहल के अंदर रिक्रिस्टलाइज कर सकते हैं. इस तरह से हमें जो है ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑब्टेन होता है. नाउ एस्टिमेशन मेथड, एस्टिमेशन बाय यूजिंग दी TLC मेथड. स्टेशनरी फेज इसके अंदर जो है सिलिका जेल जी, मोबाइल फेज एसीटोनाइट्राइल और बेंजीन, उसका रेशियो जो है 30:70. सैंपल 1 mg in 0.1 ml of 25% water in methanol and detecting agent 1% solution of cearic ammonia sulfate is ammonia sulfate in 85% phosphoric acid. RF वैल्यू उसकी क्या होगी, RF वैल्यू जो है वो 0.39. तो यहाँ पर जो है ये TLC मेथड से अपने उसको एस्टिमेट कर सकते हैं. उसके लिए जो है स्टेशनरी फेज जो है वो जरूरी है, वो सिलिका जेल की प्लेट यूज होगी. यहाँ पर मोबाइल फेज यूज होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज होते हैं. और सैंपल किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसको जो है 25% वाटर इन मिथेनॉल, मिथेनॉल के अंदर उसको प्रिपेयर करेंगे. दैट इज द डिटेक्टिंग एजेंट 1% ऑफ सेरिक अमोनिया सल्फेट इन 85% फॉस्फोरिक एसिड के अंदर उसको डिसॉल्व करेंगे और उसको जो है वो स्प्रे करेंगे. तो उसका RF वैल्यू जो हमें ऑब्टेन होगा वो कितना होगा 0.39. नाउ सी यूटिलाइजेशन. विनब्लास्टिन सल्फेट that is used for the anti-neoplastic, means it is used as a anti-cancer. It is recommended for the generalized Hodgkin's disease, lymphocytic lymphoma, histiocytic lymphoma, mycosis, fungoids, advanced testicular carcinoma, Kaposi's sarcoma and choriocarcinoma and breast cancer unresponsive to other therapies. So in short we can say it is used for the anti cancer. तो ये एंटी कैंसर के लिए जो है वो बेस्ट ड्रग है, उसको जो यूज किया जाता है एंटी कैंसर के लिए. और विनक्रिस्टिन सल्फेट, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ल्यूकेमिया, combination therapy of Hodgkin disease, lymphosarcoma, reticulum sarcoma and rhabdomyosarcoma, neuroblastoma and Wilma tumors. Or Vendicin, it is used as a
सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ विनब्लास्टिन। तो ये जो है दैट इज दी सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है किसका, विनब्लास्टिन का, विंडीसिन। सो ये हो गया हमारा। नाउ सी द मार्केटेड प्रिपरेशन। तो मार्केटेड प्रिपरेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विनक्रिस्टिन जो है ये मार्केट में अवेलेबल है, विनब्लास्टिन जो है ये भी अवेलेबल है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है उसके वो मार्केट में अवेलेबल है। नाउ दिस इज माय मोर वीडियो और यू कैन सर्च बाय माय चैनल Sufiform Dr. Sufyan Ahmed. Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell like button, and also visit for notes www.drsufyan.blogspot.com and www.sufiform.blogspot.com. Thank you for watching.